السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ سئیلا، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی تبدیل کرتا ہے کفر کو، جو کوئی بدل دیتا ہے کفر، بالایمان، بدلے ایمان کے، فقط، پس تحقیق، ضل، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے، ودہ، چاہتے ہیں، کثیر، زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لو، کاش، یردونکم، وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنی جانوں کے نزدیک، اپنی جانوں کے اندر، من بعد، اس چیز کے بعد، ما تبینہ، کہ ظاہر ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے سچ، فاعفو، پس معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک، یاتی اللہ، لے آئے اللہ، بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، قدیر، خوب قادر ہے۔ جی، آج کا سبق یہ 2 آیتیں، تو کل کا سبق سنانے کے لیے جو ہے ہاتھ کھڑا کریں جی، کون کون سنائے گا؟ جی، سبحان پہلے آپ سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ، جو ہم نے منسوخ کیا، من آیات، کوئی آیتوں میں سے، او ننسیہا، یا ہم بلا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، ہم بلا دیتے نعت بھی ہے، ہم بلا دیتے ہیں اس کو، یعنی اس آیت کو، نعت بحیری،
تو ہم لے آتے ہیں بہتر منہا اس سے او مثلہا یا اس کی مثال علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی وما لکم من عند اللہ اور نہیں ہے من تمہارے دون لیے اللہ من دون اللہ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر من ولی کوئی حامی ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا اچھا یہ ولی کا جو ہے نا یہ دوست کر لیں حامی کی بجائے نا ٹھیک ہے تو کیونکہ دوست ولایت دوست کے معنی میں ٹھیک ہے تو نصیر جو ہے وہ مددگار ٹھیک ہے جی نفیسہ فرقان سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر جو بلا دے من آیات میں سے ایک آیت جو ہے بلا دے ہم من آیات سے او ننسها منسوخ کر دے ما ننسخ جو منسوخ کر دے من آیات سے او ننسیہا یا بلا دیں ہم ناتی اور لے آئیں بخیر اس سے بہتر منہا اس سے بہتر او مثلیہا یا اس کی مثال علم کیا تعلم تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہو واسطے اس کے ملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی وما لکم اور نہیں واسطے تمہارے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ٹھیک ہے جی سنائیں آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسا جو ہم منسوخ کرتے من آیت اپنی آیت میں سے او ننسیہا یا بلا دے یا ہم بلا دیں اس کو ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن اس سے بخیرن بہتر منہا اس سے او یا مثلیہا اس کی مثل علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ علی اوپر کل شیء قدیر ہر شے پر قادر ہے علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہو کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ مددگار چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی تو آج کی آیت جو ہماری ہے 108 نمبر آیت ام تریدون ان تسألوا رسولکم کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور اسی طرح اہل کتاب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں
अम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से। ये बात क्यों अल्लाह ताला पूछ रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद अहले ईमान को इस बात से मना करना है कि वो अशिया के वकू से कबल ही नबी से कसरत से सवाल ना करें। मसलन जो काम अभी हुआ ही नहीं उससे मुतल्लक सवाल करना, या थोड़ा सा बयान हो और उससे मुतल्लक ज्यादा सवाल करना। जिस तरह सूरतुल माइदा की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमनो ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर तुम कुरान के नाजल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। यानी अगर इनके नजूल के बाद तुम इनकी तफसील के बारे में सवाल करोगे तो इसे तुम्हारे सामने बयान कर दिया जाएगा। इसी तरह किसी चीज के वकूफ पजीर होने से पहले भी इसके बारे में सवाल ना करो। हो सकता है कि तुम्हारे सवाल करने की वजह से उसे तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया जाए। इसीलिए सही हदीस में आया है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा जुर्म उस शख्स का है जिसने किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जो हराम ना थी मगर उसके सवाल करने की वजह से हराम करार दे दी गई। और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया गया जो अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे आदमी को पाता है, अगर वो बात करे तो वो एक बहुत बड़े मसले के बारे में बात करता है, और अगर वो खामोशी इख्तियार करे तो वो इसी तरह के बड़े मसले पर खामोश रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवालात को इंतहाई नापसंद फरमाया। फिर इसके जवाब में अल्लाह ताला ने लान का हुक्म नाजिल फरमाया। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल गुफ्तगू, कसरत सवाल और अज़ात माल से मना फरमाया करते थे। ये बुखारी शरीफ की वाज़ेह रिवायत है। सही मुस्लिम में है कि आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को कसरत सवाल और अपने अंबिया से इख्तिलाफ ही की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। लिहाजा जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं तो उसे जा लो और उसे कर लो, और जब किसी चीज से मना कर दूं तो उससे रुक जाओ, उससे इज्तनाब कर लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उस वक्त फरमाया था कि जब मुसलमानों को बताया गया कि अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, हज को फर्ज कर दिया है, तो एक शख्स ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फर्ज होगा? इसने 3 बार ये सवाल पूछा। आप तीनों दफा खामोश रहे। फिर उसके बाद आपने फरमाया, लौ कुल्तु नाम लवजबत वलौ वजबत लमस्तातुम सुम्मा क़ाला ज़रूनी मा तरक्तुम। नहीं, अगर मैं कह देता हां तो हज हर साल वाजिब हो जाता, और अगर वाजिब हो जाता तो तुम्हें हर साल करने की इस्तिताअत ना होती। फिर आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखता हूं, यानी मुझसे सवाल ना करो जब तक मैं खुद ना बता दूं। इसीलिए अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमें मना कर दिया गया था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज के बारे में सवाल करें। इसीलिए हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई देहाती आदमी आए और वो आपसे पूछे और हम सुन लें। इसी तरह इस आयत करीमा के अंदर भी ना अल्लाह ताला ने इसी चीज का वाज़ेह बयान किया है कि ज्यादा सवालों को ना करो। कहीं ऐसे तो नहीं तुम सवाल करने वाले जैसे कि मूसा सवाल किए गए थे, और जो सवाल तुम मसलन ये सवाल करते थे कि हमारे लिए किताब आसमान से कुरान मजीद किताब की शक्ल में लेके आ जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे भी बड़े सवाल किए गए थे अहले किताब ने। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह ताला को हम अपनी ज़ाहिरी आंख से देखना चाहते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी से मुतल्लिक मिलता जुलता सवाल उन्होंने किया कि आसमान पे चढ़ जाए और किताब की शक्ल में कुरान को लेके आ जाएं और आके हमारे लिए नहरें भी जारी कर दें, तो फिर हम आपकी पैरवी करेंगे और आपकी तस्दीक करेंगे। तो इसके जवाब के अंदर फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि अम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तसअलू के सवाल करो,
रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए मूसा मूसा मिन कबलु पहले से। फिर इसके बाद वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, अब ये हुआ क्यों, सवाल करते क्यों थे बनी इसराइल? बनी इसराइल सवाल करते थे, अज़ुए तकजीब अनाद मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते रहते थे। तो इसी चीज को कुफर से मुतनब्बे किया कि यानी ईमान लाने के बाद भी अगर ये अमल करते हो तो ये कुफर से मुशाबत रखता है। वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जिसने बदला कुफर बिल ईमान, बदले ईमान के, यानी ईमान के बावजूद ऐसी बातें की, तो फकद पस तहकीक जल्ला गुमराह हो गया, सवा अस्सबील सीधी राह से। वद्दा चाहते हैं, कसीर ज्यादा मिन अहलिल किताबी आले किताब से। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के आले किताब शामिल हैं और बाद में आने वाले भी तमाम ज़मानों के यहूद और नसारा भी शामिल हैं। जैसा कि हमारे दौर में भी इनकी तरफ से इल्म तहकीक के नाम पर इस्लाम के अकायद और अहकाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि मुसलमान अगर यहूदी या नसरानी ना बने तो कम अज कम अपने दीन से जरूर बदगुमान हो जाएं। तो यही अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं, वद्दा चाहते हैं, कसीर ज्यादा मिन अहलिल किताब या अहले किताब से, लऊ काश यरुद्दूनकुम, वो फेर दें तुमको, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा काफिर, यानी तुम मुसलमान हुए हो उसके बाद दोबारा से वो तुम्हें काफिर बना दें, यही अहले किताब में से ज्यादातर चाहते हैं। और ये चाहते क्यों हैं? हसद की वजह, हक को पहचानने के बावजूद इनकी ये ख्वाहिश महज हसद की वजह से है, और हसद भी किसी दीनी जज्बे की वजह से नहीं, बल्कि इनकी दिलों के बाज इनाद, गुस्से और इसी तरह बुग़्ज़ की वजह से है। इससे हसद की कबाहत जाहिर हुई कि खुद भी ईमान से महरूम रहे और दूसरों के पास ये नेमत देखना भी बर्दाश्त नहीं। इसीलिए हसद बुरी चीज है कि ये तो नहीं करता कि चलो मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ना रहे, उसको इतनी खुशी इस चीज की नहीं होती कि कोई चीज उसको भी मिल रही है, बल्कि इस चीज की उसको ज्यादा खुशी होती है कि उसके भाई के पास से भी छीन जाए। इसीलिए हसद बुरी चीज है, और ये इतना बुरा काम भी कर रहे हैं, और किस वजह से कर रहे हैं? हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, हसद की वजह से जो कि इनके दिलों के अंदर है, मिन बादि मा तबय्यना, उस चीज के बाद जो कि जाहिर हो चुका, लाहुमुल हक, उनके पास हक, उनके सामने हक, यानी उनको हक का पता भी है लेकिन फिर भी सिर्फ हसद की वजह से उनके दिल ये चाहते हैं कि वो तुम्हें दोबारा से काफिर बना दें, तुम्हारे ईमान लेके आने के बाद से दोबारा से तुम्हें काफिर बना दें। इब्लीस का सजदे से इनकार, आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का अपने भाई को कत्ल करना, बरादरान यूसुफ का अपने भाई पर जुल्म करना, और अहले किताब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद इनकार और दुश्मनी का बायस क्या था? ये हसद ही था जिसकी वजह से ये सारे काम इब्लीस ने सजदे से इनकार किया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, बरादरान यूसुफ ने अपने भाई पर जुल्म करके निकाल दिया, घर से कुएं में फेंक दिया। अहले किताब का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक जानने के बावजूद भी नाम मानना है, किस वजह से है? ये सारे हसद की वजह से हैं। अब जब कोई किसी से हसद करता है, किसी के सामने अपनी इस तरह की चीजें करता है, तो उसको फिर पता भी चल जाए ना, तो बंदे को गुस्सा आता है, वो उसके बदले में कोई लड़ाई झगड़ा में पड़ना चाहता है। इसी चीज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फाफू, पस माफ करो, वस्फहू, और दरगुजर करो, हत्ता, यहां तक, याती अल्लाहु, ले आए अल्लाह भी अम्रिही, अपने हुक्म को, यानी जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इनके साथ लड़ाई का हुक्म ना आ जाए उस वक्त तक उफ़ो दर उज़र से काम लो। इनके ऊंचे हमलों को, इनके हसदो बुग़्ज़ की वजह से बेकाबू ना होना, बल्कि अपने आप को कंट्रोल में रखना। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लड़ाई कर लेना,
फिर इसी तरह जब अल्लाह का हुक्म आया, फिर लड़ाई का हुक्म आने पर बनु नुज़ैर और बनु कैनका को जलावतन होना पड़ा और बनु कुरैज़ा कत्ल हुए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर खूब कादिर है। जी ये आज का सबक था। ये हमने ना ये कुछ इबारतें हम देखते हैं आम हमारे मुआशरे में भी होती हैं, ये मैंने जिसको हाईलाइट किया ना, तो ये इबारत आज एक जाते हुए रास्ते में हमने देखी कि उधर उर्दू में जो है वो सामने लिखा हुआ था, बड़ा सा बोर्ड लगा के उन्होंने लिखा हुआ था उर्दू से। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया जी इसकी अरबी क्या बनेगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं हमारे सामने भी होती हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे अलम तालम, क्या नहीं जाना तुमने, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ही, लहू, उसी के लिए है, मुल्क समावाती, बादशाहत आसमानों के वल अर्ज़, और जमीन के। ये जो हम सबक पढ़ते हैं ना, अपना आयतें पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, ये आम हमारी रोजमर्रा के हालात में भी चीजें कहीं हमारी नजरों से गुजरती हैं, मुशाहिदा से गुजरती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमने सबक पढ़ा होता है, ताजी ताजी चीजें होती हैं, वही चीजें हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं। और इस तरह का जब मौका आता है ना, उससे फायदा उठाकर अपनी चीज को पक्का किया करें, और ताकि बाद में कभी जिंदगी में याद आए तो आपको उसके फौरन मफहूम की समझ आनी चाहिए। उसके मफहूम के बाद पता चलना चाहिए कि ये हुक्म किस वजह से नाजल हुआ है, इससे कौन सा मसला बन रहा है, क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जो है उसी वक्त ज़हन में फिर आ जाती हैं, ताकि उस मौके से फायदा उठा के उस चीज को हमने पक्का किया होता है। तो ये भी सिलसिला अच्छा जी, सब सबक सुनाते हैं और सुना के तो, लेकिन एक चीज का ख्याल किया करें, सबक ना इस तरह सुनाया करें कि पहली कोशिश तो ये कि लफ्ज़ी तर्जुमा कर दें, ठीक है, हर लफ्ज का तर्जुमा कर दें। लफ्ज का तर्जुमा करने के बाद फिर कोशिश करें उससे फिक्रा बने, और फिक्रा ऐसा बने उससे कि उससे मतलब में कोई चेंजिंग ना आए, जो कि मतलब है उसी के मुताबिक फिक्रा बने। उसमें कुछ हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं जैसा कि, इसलिए, बल्कि, यकीनन, कुछ इस तरह के लफ्ज होते हैं जो कि उस जुमला को पूरा करने के लिए हम ऐड कर देते हैं, उनकी अरबी हमें नजर नहीं आ रही होती, तो वो अपने बामुहावरा जुमला को मुकम्मल करने के लिए उसको ऐड कर भी दिया करें। और अगर लिखना पड़े उसको तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखें, और अगर वैसे भी ऐड करें तो ज़हन में यही रखें कि बात को समझने के लिए मफहूम के तौर पे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो फिर हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।